Assalamualaikum sir. My name is Huzaifa Hasham. I am studying at Roots Millennium School, Islamabad. I am studying in grade 5. I watch your videos. They are very informative and you give question answer in very detail. So my question is, water expands when it freezes, but other substances contract when they solidify. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you for your question, Josefa. Josefa, this is your question. What does expand when it freezes, but other substances contract when they are solidified? Well, the answer to your question is just one word: water. But I don't think you intend to ask this question. You actually want to understand why does water expand when it freezes while other substances contract when they are solidified. This should have been your question, and I'm sure your intention is to understand the behavior of water. Now the question you have asked is very important and it is a very interesting question. Now I would ask you to allow me to use both the languages, Urdu and English, because most of the people are demanding that I should be delivering the lecture in Urdu also, so that the students of Urdu medium schools should also understand. So I'll be using both the languages, Urdu and English, in explaining this lecture. Okay, Josefa, there is a natural rule, there is a general rule when the substances and the liquids, when they are cooled, they become denser. And water also follows this rule. But water follows this rule only up to 4 degrees centigrade. Below 4 degrees centigrade, water starts violating this natural rule. Now let's understand it step by step. The room temperature of water is 20 to 25 degrees centigrade. It ranges between 20 to 25 degrees centigrade. Now, what is the room temperature? Room temperature is the temperature of a room not being heated or cooled directly. So it ranges between 20 to 25. When you take a glass of water and leave it sitting out in a room, inside a room, its temperature will approximately be 20 to 25 degrees centigrade. So that will be the room temperature of water. Now, what you do, you cool it. You cool it, either you put ice into it or you put the glass of water in the fridge. What will happen? The heat of the water will be removed. That heat energy will be removed. When you will add ice, you see the temperature of ice is less than the temperature of water. Now the heat from water will be absorbed by the ice and water will become cooler. When it becomes cooler, its energy is decreased. Its molecules, they start moving slowly because their kinetic energy decreases, because most of the heat has been absorbed by the ice. So their movement starts decreasing and they start coming closer to one another. When they come closer to one another, their density increases. Now you understand the density? उर्दू में इसको गाढ़ापन कहते हैं कि वो ज्यादा गाढ़े होते जाते हैं. They become denser and denser. As you cool the temperature, they become denser and denser. The molecules come closer and closer, denser and denser. When the temperature comes down to 4 degrees centigrade, the density of water is maximum. Water is densest at 4 degrees centigrade.
4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी सबसे ज्यादा उसकी जो कसाफत है, उसका जो गाढ़ापन है वो मैक्सिमम हो जाता है। Now, when you decrease the temperature further down from 4 degrees centigrade to 3 degrees centigrade and then downwards 2 degree, 1 degree and 0 degrees centigrade, it starts behaving otherwise. Now it starts violating the natural rule. अब ये कानून की खिलाफ वर्जी शुरू कर देता है। अब इसकी डेंसिटी इंक्रीज नहीं होती। The other substances, they keep on dancing, मगर ये अब एक्सपैंड करना शुरू कर देता है। 4 डिग्री से 3 डिग्री पे लाएंगे तो अब ये मॉलिक्यूल्स परे परे हटने शुरू हो जाएंगे। द डिस्टेंस बिटवीन देम विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। 3 डिग्री पे डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, डेंसिटी कम हो गई। 2 डिग्री पे और इंक्रीज हो गया, डेंसिटी और कम हो गई। 1 पे और डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, और 0 डिग्री पे डेंसिटी मैक्सिमम कम हो गई, यानी मिनिमम डेंसिटी होगी। बहुत ज्यादा फैल गए 0 डिग्री पे, जब वो आइस बन गई, जब वो फ्रीज हो गया वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो बहुत ज्यादा फैल गया, एक्सपैंड कर गया। ठीक है, अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जब आप नीचे जाएंगे -1, -2, -3, -4, तो फिर वो असली अपने नेचुरल रूल को फॉलो करना शुरू कर देगा। सिर्फ ये जो खराबी करता है, एनोमली जो पैदा करता है, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान करता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक नेचुरल रूल को फॉलो करता है, यानी टेम्परेचर डिक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, और फिर 0 डिग्री के बाद जब -1, -2 तक नीचे तक आप ले जाते हैं, तो फिर ये नेचुरल रूल फॉलो करना शुरू कर देता है, यानी टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम 0 टू -1, -2, -3, द डेंसिटी इंक्रीज। अब 0 के बाद फिर डेंसिटी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, मॉलिक्यूल फिर नजदीक नजदीक आना शुरू हो जाते हैं। मगर इवन अप टू -50 डिग्री सेंटीग्रेड its density does not become equal to what it was at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जितनी इसकी डेंसिटी थी, -50 पे भी उतनी नहीं होती। हालांकि 0 डिग्री के बाद ये डेंस होना शुरू हो गया था। -50 तक भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जितना ये डेंस था, उतना डेंस नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि इसकी डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम है। ठीक है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिनिमम है। 0 डिग्री से तो फिर बढ़नी शुरू हो जाती है ना। तो अच्छा, अब इसका ये बिहेवियर ऐसा क्यों है, ऐसे क्यों करता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान ये नेचुरल लॉ, नेचुरल रूल को वायोलेट क्यों करता है? देयर आर 2 रीजंस। नंबर 1 इज द बेंट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। पानी का जो मॉलिक्यूल है उसकी शेप ऐसी होती है, मैं आपको दिखाता हूं अभी, वो बेंट शेप होती है। और दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। जब ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर इसका पहुंचता है, ऊपर से नीचे आते आते, तो उसके बाद क्या होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देते हैं। वो इस तरह ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दे स्टार्ट एक्सपैंडिंग। वो इस तरीके से उनको अटैच करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाटर मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ इस तरह जोड़ना शुरू कर देते हैं, इस तरह कंबाइन करना शुरू कर देते हैं कि उनको स्पेस चाहिए होती है वाटर मॉलिक्यूल्स को। जब उनको स्पेस चाहिए तो जाहिर है वो फैलेंगे, एक्सपैंड करेंगे। तो 2 वजूहात की बिना पर ये एक्सपैंड करता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद। नंबर 1,
द शेप ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इटसेल्फ, बेंट शेप होती है। एंड नंबर 2, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड इज बेसिकली द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो उनको आपस में जोड़ के रखती है, कंबाइन करके रखती है मॉलिक्यूल्स को, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से और वाटर के मॉलिक्यूल की शेप की वजह से ये इसका एनॉमलस बिहेवियर होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इसलिए ये एक्सपैंड होता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं ये शक्ल। ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। यहां पे ये देखें, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, और ये 2 इसके साथ हाइड्रोजन अटैच, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन। ये देखें इसकी शेप बेंड हुआ है, बेंट शेप है इसकी। ठीक है, अच्छा, फिर ये देखें, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, वाटर का एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है। ये दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये दोनों मॉलिक्यूल को जो कंबाइन करती है, वो ये डॉटेड लाइन जो है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी तरह इसके और इसके दरमियान ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड। तो ये मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड शो किए हुए हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, ये इस तरह बनता है कि पानी के एक मॉलिक्यूल के गिर्द 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर अटैच्ड टू 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के साथ 4 मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड, एंड व्हेन दे आर अरेंज्ड इन दिस मैनर, लुक, they need space, they are spaced apart. जब वो परे परे होते हैं, when they are spaced apart in this arrangement, they need more space, so they expand. I hope you have understood the concept of anomalous behavior of water. Why this anomaly? Why it does not behave like other substances between 4 degrees centigrade and 0 degrees centigrade? Because of 2 reasons. The shape of the water molecule, bent shape, and the hydrogen bonding between the molecules of water. These are the 2 reasons. और मेरा ख्याल है कि आपके लेवल तक इसको इतना ही समझाना बनता है, क्योंकि आगे फिर ये जो फर्दर डिटेल है इसकी कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होती है, वो फिर टॉपिक सीनियर क्लास का आ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह का कॉन्सेप्ट, वो 9th और 10th क्लास की केमिस्ट्री वगैरह में है। आपके लेवल पे ये बात नहीं है, आपके लेवल पे बस इतना ही था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन आपको फील हो, यू कैन ऑलवेज रिटर्न बैक टू मी, आई विल आंसर योर क्वेरी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।